Namaskar, friends. Today we would talk about life and death. Very interesting subject. But before we start, I would like to do a small prayer, as I do always. Okay, so today's topic is little interesting. Life and death. So let's talk about death first, and then we'll go to life first. So basically, death, yeah, Maran. Uh, what is it? What is death? Death is nothing but discard. You discard your old body and you get a new body, depending on your deeds, on your karam, on the way you have lived your life. Is it beautiful life, or a bullshit life, or a evil life, or any type of life that you live? It all depends on that. What kind of life you live. In that, there's nothing to be scared about. What is death? There's nothing to be scared of death, because a lot of people get scared. अरे मैं मरने वाला हूँ. तुम technically मरते ही नहीं हो, sir. Why you don't die is because you consider yourself to be a body, which you are not, and because of that you have fear. Fear is in body, not in the soul, because soul never dies. It is an eternal part and parcel of God, and it is a spark of light. It's like so small. उसका weight है 22 grams. Weight of your soul is 22 grams to be precise, and it is a power of 300 suns. The sun that you see in the sky, imagine that 300 suns is being compressed inside one small, such a small light ka gola. That's so small it is. So that is basically your soul. It is param tattva se bana hua hai. It's made up of different qualities of souls are there, but some are higher level souls, some are very low level souls, because um, when you die, there are different types and ways you die. Like, for example, in your body there are seven chakras inside this body. One chakra is over here, that's Sahasrar. You would always see a halo on these saints. Jesus का अगर if you concentrate on the picture, और आप अगर Jesus के picture को देखोगे, मदर मेरी के picture को देखोगे, you would see that there's a halo here. That's your Sahasrar chakra. So let's start from the down chakra towards up. First chakra is your Mooladhar chakra, which is really here, where is your ass? It's right over there somewhere. And you cannot technically open a dead body and check where exactly these chakras are, but these are energy center points. And most of the people, 95 to 98%, I would say, or 95, I would say, let's catch 95% of the people die in these three chakras. Okay, the pehla wala hai Mooladhar. Mooladhar is your basic necessity: roti, kapda, and makan. Food, clothing, and shelter. And after that, you jump a little bit higher. That's your sacral chakra. That's solar plexus. That's your Swadhisthana chakra. It's right over here, uh, above your reproductive glands. It's right over here somewhere. And that is basically your sacral chakra. ये आपको कभी मिठाई खाने का मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, तो समझ जाओ कि आपका एनर्जी यहाँ पे है. दैट्स योर स्वादिष्टाना चक्र. After Swadhisthana chakra, you jump up little bit over here. Over here somewhere there is a chakra called as Manipura chakra. It's like fire of willpower. Like मेरे को ये करना है. Today I'll become a prime minister of the country. Today I'll become a politician. Today I'll help people. I'll feed people. ये चक्र आपका करवाता है आपसे. करवाता है. आप सोचते हो आप करते हो, बट ये एनर्जी आपसे करवाता है. यही एक सीक्रेट है जो बहुत लोगों को पता नहीं है. Then after this you jump up a little bit over here, Anhat chakra. This is a chakra of love, compassion, grace. जब भी ये एनर्जी ये तीनों चक्रों को भेद के सुषुम्ना नाड़ी थ्रू इट enters over here, Anhat chakra, you would have compassion, love, grace.
इन योर हार्ट फॉर एवरी लिविंग थिंग. वो एक एंट भी होगा, इवन इफ इट्स अ स्मॉल एंट, यू विल नॉट वांट टू किल इट. यू विल ऑलवेज हैव लव, कंपैशन. यू सी अ बेगर, यू सी अ फकीर, यू विल वांट टू फीड. तो समझ जाओ कि आपका चक्र वो एनर्जी फ्लो होते रहता है. इट कीप्स ऑन डांसिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. इट नेवर बी स्टेबल, because energy cannot be stabilized. It always changes from one form into another. The same way when you die, you change from one energy into another. um, इसमें आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा हाउ गोस्ट और भूत आर फॉर्म्ड. वो भी आपको मैं समझाऊंगा आगे वीडियो में. आफ्टर दिस चक्र देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विशुद्धि चक्र. दिस इज अ चक्र वेयर यू वुड स्पीक द ट्रुथ, नथिंग बट द ट्रुथ. आपको सच ही बात करोगे. आप झूठ बोलना प्रेफर नहीं करोगे, और आप झूठ बोलोगे तो ये चक्र आपका मैल फंक्शन होना चालू कर देता है. सो बेसिकली आपके हाथ में है आपके चक्र कैसे चलेंगे. टेक्निकली इट इज़ ऑन योर फ्री विल. तो ये विशुद्धि चक्र है. ये चक्र अगर एकदम पावरफुली एक्टिव हो जाता है, यू वुड लिटरली बी एबल टू मैनिफेस्ट थिंग लाइक वन क्लिक. पेड़ा आ गया, बर्फी आ गया, ये सब चीज़ें, जलेबी आ गया. सो वो पावर आ जाता है. यू गेट दिस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आई ट्राई अ लॉट बट मेरे से नहीं होता है. अभी तक मेरी शक्तियाँ अभी तक पूरी खुली नहीं है. खुल जाएंगी तो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है. बट हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है. उसके बाद आपका आता है अजना चक्र. यहाँ पे एक चक्र है. वो चक्र से आप फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, aliens, deities, demigods. You would be able to see all these people. You just have to close your eyes. You'll see uh, Shiva, Shankar have a third eye over here. Generally सबका होता है, because आप ही शिव हो, आप ही सब हो. आप यहाँ पे आके इस पृथ्वी पे you have forgotten yourself. Who are you? What are you? So after this चक्र से आपको बहुत सारी cosmic intuitions दिखते हैं. मतलब you will be able to see like visions आते हैं. आपके साथ कुछ गलत होने वाला, यू वुड ऑलवेज गेट अ फोरसाइट. जनरली वुमेन हैव दीज इंट्यूशन क्वालिटीज ऑन अ हाई लेवल. इनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से राइज होती है, डाउन होती है, बिकॉज बहुत इमोशनल बीइंग है ये. तो फिर इस चक्र के बाद आता है आपका सहस्रा. इसके ऊपर भी बहुत सारे अलग चक्र है, इनविजिबल है, आपको दिखते नहीं है, बट इट इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स, द गॉड, गॉड ऑलमाइटी. ये जो सहस्रार चक्र है, ये आपका चक्र है फेथ का. यू वुड हैव crazy amount of faith on God. Like for example, when I was going to US, I had no place to live, no nothing. Like uh, मैं सोच के ही नहीं गया था मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ. बट मैं बोला मैं जा रहा हूँ, पर मैं गया. बट आई हैड अ फेथ कि भाई गॉड विल टेक केयर ऑफ मी. And trust me, God actually took care of me, gave me house, food, clothing, shelter, everything. भाई सामने से आ गया automatically. I didn't even need to do move a single muscle. This is called faith, because your faith needs to be so strong in God. मतलब कुछ भी हो जाए, even if there's a bull, there's anything coming towards you, charging with full ferocity, full power, but you have the power of faith in you कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरा बाप, मेरा परम पिता परमेश्वर मेरा ख्याल रखेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा. इसको बोलते हैं फेथ. तो ये आपकी सारी एनर्जी चक्र ऊपर नीचे जंप करती रहती है. तो आप इसको ज़्यादा इस पे ध्यान मत दीजिए. इट विल कीप ऑन फ्लोइंग अप एंड डाउन. सडनली यू विल बी इन मूलाधारा. यू नो, थोड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट्स चीज़ें, जो भी आपका फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर वाली चीज़ें, समझ जाओ कि आपको फील हो रहा है, ये करना है, वो करना है, कपड़े लेने हैं या घर बनाना है, ये जो भी है वो आपका मूलाधार है. आ, ये सारे चक्र एक्टिवेट होने के बाद आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ आती है. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव हनुमान जी. हनुमान जी क्या शक्ति है, छोटा रूप बनाएंगे, बड़ा रूप बनाएंगे. यू गेट ऑल दीज पावर्स. मूलाधार भी एक ऐसा ही चीज़ है. आपका अगर मूलाधार बहुत स्ट्रांग होगा, तो यू कैन इंक्रीज योर साइज, यू कैन इंक्रीज, सॉरी, यू कैन इंक्रीज योर हैवीनेस. आप एकदम एक ही जगह पे बैठ जाओगे और आपको कोई नहीं हिला सकता है. वो एक अलग अलग चीज़ें हैं. ये शक्तियाँ आपको धीरे धीरे करके मिलती जाती है, प्रोवाइडेड इफ़ यू स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ. इफ़ यू डोंट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ यू कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड, बिकॉज आपका लाइफ वेस्ट है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. You are just being an NCP, जो आप, just खाना पीना, हगना मुतना, एंड
वही सब चीज़ करोगे बेसिकली, समझ रहे हो? आप कभी हायर डायमेंशंस में नहीं जाओगे, आप यहीं पे घूमते रहोगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ डेथ, ये जो चक्रस है, ये गेटवेज है आपके, यू टेंड टू डाई फ्रॉम दीज गेटवेज। मतलब आपका सोल, ये रेम्स, ये आपके अंदर ही हेवन है, आपके अंदर ही हेल है। सो यू डाई फ्रॉम दीज रेम्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? If you would find a lot of people when they die, when their soul comes out, when the soul is going towards durgati or mode, the darkness, the downward energy flow, ये आपका डाउनवर्ड एनर्जी फ्लो है। ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, ये नीचे एनर्जी जा रही है। मेल आर दिस एनर्जी, फीमेल्स आर दिस एनर्जी। ठीक है, तो जब भी आपकी एनर्जी ये साइड ऊपर जा रही है, ये अलग डायमेंशंस पे आपको लेके जाती है। अगर आपकी एनर्जी नीचे के सेक्शन में जाती है तो आप अलग अलग डायमेंशंस में जाते हो। पहले आप जाओगे एनिमल किंगडम में, क्योंकि ये पिजन्स, कबूतर, ये सारे जितने भी आपको जीव, इंसेक्ट विंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, ये सब दिख रहे हैं, ये सब डाउनवर्ड। मतलब इन लोगों ने कुछ तो ऐसा खराब कर्म किया है कि इनको पनिशमेंट के हिसाब से दे गेट टू गो टू ऑल दीज एनिमल किंगडम। तो उसके बाद कोई बंदा है या कोई बंदी है जिसने बहुत खराब कर्म किया और मतलब इविल सोल हो गया वो, तो वो और नीचे जाएगा हेल में। हेल में भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लेवल है। देर आर टोटल टोटल 33 लेवल, 33 crore or 33 million or whatever you call it, level of hell. The same level of things are on top, so as above so below. So where you take this energy, it depends on that. You either choose to go take this energy upward direction, going upward, or you take this energy downward. Now woman and man come together, is that's what creation comes to the place, when you technically have a procreation. So, and you would see a lot of people who die from these lower chakras, जो भी मूलाधार से निकलता है बाहर, पोर्टल से, ये पोर्टल्स है आपके बॉडी के अंदर, वहां से निकलता है, तो दैट पर्सन विल शिट और पी एट द टाइम ऑफ डेथ। तो समझ जाओ कि भाई ये दुर्गति में गया, मतलब ही इज गॉन टू द लोअर रेम्स। अगर स्वादिष्टाना चक्र से आप जा रहे हो, अलग अलग पोर्टल्स है, अनहत से निकल रहे हो बाहर, तो यू विल बी, यू नो, ऑल यू विल टर्न आउट टू बिकम अ म्यूजिशियन इन द फ्यूचर लाइफ। तो ये अलग अलग पोर्टल्स है स्वादिष्टाना में। तो जनरली एट द एंड ऑफ योर डेथ, वॉट यू थिंक इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट। Now, at the end of your death, if you keep on thinking about these material things which are not real, as I told you, creation took place 27 times. So, if you calculate with the time, it's so much of time, bro. Like, my God, millions and billions of years you've been keep on coming again and again, again and again. So, आप calculate कर सकते हो. Last time when I went to calculate my age of my soul, it was 311 billion years old. 300 billion years old. कैलकुलेट कर रहा था मैं ब्रह्मा के, फटने लगा मेरा सर। बोला भाई साहब, इतने टाइम तक मेरे को निर्वाणा या मोक्ष नहीं मिला, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स आई और यू हैव कम बैक ऑन दिस अर्थ। इमेजिन द लाइफ टाइम, ऑल दिस डेटा is stored in your soul, समझ रहे हो? now all the karmas, the good, now imagine the level of karmas that you might have created। अभी समझ रहे आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो? आप यहाँ पे आ रहे हो आपका कर्म काटने के लिए, धीरे धीरे। इफ यू वांट टू क्लीन योर कर्मा ए सैप, लाइक एक शॉट में आपको खत्म करना, यू वुड हैव टू डाई। Same concept applied to Jesus. He took every soul's karmas, negative energy onto himself, or he killed himself technically, or he was sacrificed or something. Somebody killed him or something. वो एक माध्यम है, निमित्त मात्र है, मतलब ये एक गेम है to create a beautiful story for human beings, for us to understand and realize what is the truth of life। बट वी डोंट वांट टू स्पेंड दिस टाइम स्टडिंग, रीडिंग, ये सब चीज़ में अपन करते ही नहीं है यार। फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट बर्बाद कर रहे हैं ज़िंदगी में। क्या कर रहे हैं किसी को क्या पता। अभी ये बीच में आ, कश्मीर में अटैक हुआ, क्या है ये? मतलब आपको जन्नत नहीं मिलेगा भाई, मैं तेरे को खून में लिख के देता भाई, तेरे को जन्नत नहीं मिलेगा, समझ रहे? इस्लाम का नाम खराब कर रहे हो तुम। इस्लाम का नाम है पीस, हार्मनी, लव,
और तुम क्या कर रहे हो? जिहाद। अबे मूर्ख प्राणी, तेरे को जिहाद करना है, अपने आप के साथ जिहाद कर, उसको बोलते हैं जिहाद। लड़की दिख गई, तू कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, कंट्रोल योर सेंसेस, दैट इज कॉल्ड जिहाद। यू हैव टू डू जिहाद विद योर ओन सेल्फ, नॉट जिहाद विद समबडी एल्स, यू स्टूपिड मोरॉन। आपको समझ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इमाम आके आपको बोलता है कि ये करो वो करो, और क्या कर रहे हो जिंदगी में? साला दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंटेलिजेंस नहीं दिया तुमको। फुकट में यार मेरे भाई लोगों को मार रहे हो, मेरे बच्चे लोगों को मार रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुमको जन्नत मिलेगा? अबे क्या फालतू चीज है। अगर ये है, जीसस किल्ड हिमसेल्फ ऑन द क्रॉस, यू नो हाउ मेनी लीजियंस ऑफ आर्मी ही हैड। आपको पता है क्या वो बंदा क्या आदमी है? भाई एक आवाज देता था ना, पूरा एंजल्स आते थे, पूरे सबको खत्म कर देते थे वो। तुम मिखाइल एंजल, मिखाइल एंजल गेब्रियल, तुम ये सब छोटे मोटे समझते हो ये बंदे लोग को? भाई पावरफुल आर्क एंजल्स है ये, इतने बड़े बड़े एंजल्स है ना ये, आपको पता नहीं है। एक फटके में, उनके पास इतनी शक्ति है ना, एक शॉट में सबको खत्म कर सकते हैं वो। तो भी he didn't do anything in that, he still sacrificed himself for you. And here you are doing jihad and killing people, and you think you're going to get jannat, you're going to get Allah's grace? Stupid fucking moron। दिमाग का सेंस नहीं है, कुछ सेंस लॉजिक नहीं है, लोगों को मार रहे हो। क्या कर रहे हो ब्रो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुमको इधर जन्नत बनाने के लिए भेजा। यू हैव अ सेंट ओवर हियर टू मेक this place earth as heaven, because this earth has gone into so much negativity, it has gone in minus 100% negativity। उसको कला में आपको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ मुझको नहीं पता, बट 100 कला में गया है माइनस में। दैट्स वाई यू वर सेंड ओवर हियर टू मेक दिस प्लेस अ ब्यूटीफुल हेवनली रैम, कि गॉड ऑल्सो शुड फील दैट अरे भाई साहब मेरे बच्चे क्या हेवन और अर्थ बना रहे। दैट वॉज द होल कॉन्सेप्ट of humankind to be born on this earth, but what are you doing? Killing people, and you think you're going to get jannat? Stupid fuck। मैं तेरे को लिख के देता है जबान पे, with God and God's grace and glory in me, you will not get jannat bro, you would not get, you would get hellish realms। 55 लेयर्स है, 55 मिलियन लेयर्स है हेल का, और हर एक लेयर में इतना खतरनाक चीज़ है ना। अगर आपको पूछना है ना भाई, पढ़ना है ना, गरुड़ पुराण करके एक चीज़ है, पढ़ो जिंदगी में, आपकी फट जाएगी। एक एक चीज़, एक एक मूव करने से डर जाओगे आप, कांपोगे आप। कुछ सेंस का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, और कर रहे हो किलिंग। किलिंग व्हाट? किलिंग फॉर हु? इन द नेम ऑफ अल्लाह? फकिंग स्टूपिड मोरॉन। अल्लाह का नाम खराब कर रहा है, एक ये नाम खराब कर रहा है, वो नाम खराब कर रहा है, जन्नत मिलेगा इनको, साला कुछ भी बात करता है। अगर यही होता तो जीसस ने इतने लोगों को क्यों नहीं मारा? फिर क्यों अपने ऊपर सब सिंस लेके उसी किल्ड हिमसेल्फ? लोगों को मार रहे हो। क्या? क्या गलती? आई नो थियोरी ऑफ कर्म अप्लाइज टू एवरीबडी। हर एक अलग अलग बंदा अलग अलग स्टाइल में मरता है, कोई जल के मरता है, कोई ये करता है। आपका ही कर्म आपके सामने आ रहा है, वो ट्रुथ मुझे पता है, बट इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू creation of karma, you are going to cause a big trouble, dude, you are going to fall into a very big trouble, understand this? Some stupid stuff that you guys are doing for no valuable reason। जन्नत चाहिए इनको, जन्नत। 72 हूर चाहिए, हूर। इधर एक बीवी संभालने के लिए जान जाती है, 72 हूर संभालेगा तू हेवन में जाने का। इनको क्या फालतू चीज़ है। कभी ज़िंदगी में कुरान नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, और बड़ी बड़ी बातें बोलते, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते वाला डायलॉग चल रहा है। कुछ भी करता है पब्लिक। कभी कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए मुझको, बट यार मेरे को ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रहा दुनिया में क्या चल रहा है यार। तुमको भेजा क्या गया है करने के लिए? हेवन ऑन अर्थ बनाने के लिए भेजा है, इधर एक दूसरे को मार रहे, झंडा लहरा रहे। अगर तुम में इतनी शक्ति है ना, एक जगह पे मेडिटेट करके बैठ के देखो, एंड कंट्रोल योर बॉडी एंड सेंसेस एंड शो मी, तो देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिकिंग फाइट, व्हाट इज द पावर ऑफ योर बॉडी एंड व्हाट इज द पावर ऑफ योर सोल। देन आपका दूध और पानी हो जाएगा। 5 मिनट बैठ, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, 5 सेकंड सिट इन मेडिटेशन एंड शो मी, आई मानव यू। सिट ले दैट एंड सी, इधर खुजली आएगा, उधर खुजली आएगा, पीठ दुख रहा है, गांड दुख रहा है, सब दुख रहा है। ये है तुम्हारा जिहाद, और ये है तुम्हारा गौ रक्षा। ये करो, फालतू चीज़ में टाइम जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया था। कोई कोई चीज़ पसंद नहीं आती यार ज़िंदगी में यार, यू नो इनोसेंट लोगों को मारना मेरे को पसंद नहीं यार। ये सब राइचियसनेस हो यार, ये क्या है? ये राइचियसनेस है? फालतू चीज़ कर रहा है पब्लिक। सो अगेन कमिंग बैक टू द हैप्पी मी। सो ये वही आपको मैं समझा रहा था कि डेथ तो बहुत होने ही वाला है। यू विल हैपन वेदर यू अग्री टू इट और नॉट अग्री टू इट। And life is a very beautiful thing, man। What is life? Life is God's
गिफ्ट टू यू, बहुत बड़ी चीज़ है ब्रो. Why is it a gift to you? You know, because if you see from your third eye, अगर आपकी ये खुल जाए तो you would see after 1,000 kilometers or 100 kilometers, you would see all the levels of souls waiting, eagerly waiting to have this body. भाई मज़ा आता है कोई लड़की हाथ लगाएगी तो, मज़ा आता है जलेबी खाओगे तो, मज़ा आता है ये सब चीज़ करने के लिए. ये सारे जितने भी सोल्स है, ये सब भटक रहे हैं. आधे तो ऊपर डायमेंशन में रुके अपना नंबर के लिए. ऑलरेडी 8 बिलियन है, समझ रहे हो. उसमें से बहुत सारे एलियन भी आए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं ये सब चीज़ के एलियन. ये जितने भी आपको गोले दिख रहे, प्लैनेट्स दिख रहे, सब पे लाइफ फॉर्म है. सन में जो लोग रहते हैं, वीनस में लोग रहते हैं, वो जगह के तत्वों के हिसाब से वो वैसे है. Generally, you are made up of 5 fingers or 5 tattvas. That's why you have 5 fingers. If you're born in four elemental space, you would get 4 fingers. If you're born in two elemental space और आपका पृथ्वी का रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी अलग अलग गोले हैं, सब जगह पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं भाई. सब जगह पे ये सारे के सारे सोल्स रुके हैं अर्थ पे रीइनकार्नेट करने के लिए. बिकॉज द फास्टेस्ट वे टू गॉड इज थ्रू डर्ट. Now, dirt means earth. पृथ्वी को डर्ट बोला जाता है. इसके लिए ये सारे एलियंस भी अभी धीरे धीरे आप सब देखते जाओगे, बहुत सारे एलियंस आएंगे यहाँ पे पृथ्वी पे. क्यों? बिकॉज उनको भी ज्ञान चाहिए, समझ रहे हो. जैसे ये इतने सारे आत्माएं भटक रहे हैं. अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि भूत कैसे बनते हैं. हाउ डज अ पर्सन बिकम अ घोस्ट. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5 तत्वों से बने हो. अभी ये 5 तत्व, जब भी कोई भी बंदा मरता है, अभी उसके मरते वक्त उसकी इच्छा पूरी नहीं होती. वहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार ये भूत बना है, इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई. तो मरते वक्त आपकी क्या इच्छा है, वो इच्छा आपको भगवान देता है. अभी मरते वक्त आप घर, बीवी, बच्चा, ये वो कार करोगे. at the end of your death, your last breath, you would be roaming on this earth or roaming in that particular house or with your wife or your kid. आपका आत्मा कन्वर्जन नहीं होता है. फ्रॉम 5 into 4 into 3 into 0 2 into 1 ये कन्वर्जन होते जाता है. एंड लास्ट जीरो वे यू बिकम मर्जर विद गॉड. ये तो बहुत हाई लेवल का चीज़ है, ये आपको नहीं समझेगा. बट तो ये जो 5 तत्व से 4.5 तत्व या 4 तत्वों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं. वाई? बिकॉज मरते वक्त इच्छा पूरी नहीं हुई, समझ रहे हो. दारू चाहिए किसी को, कोई मरते वक्त सोचा अरे यार मेरे को सेक्स करने नहीं मिलेगा, लड़की लोग ने ये नहीं वो नहीं. तो वो बंदा क्या होगा मालूम है, वो जाके प्रोस्टिट्यूशन, जो जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स है या जहाँ पे भी प्रोस्टिट्यूशन होता है वहाँ पे जाके भटकते रहेगा. तो किसी न किसी के बॉडी के अंदर प्रवेश करके या किसी के अंदर बॉडी में घुस के वो ही वुड ट्राई टू एन्जॉय दैट फीलिंग ऑफ दिस सेंस ऑर्गन्स. और कोई बेवड़ा है, दारू पीता है और उसको दारू मरते वक्त उसको फील आया कि अरे मेरे को दारू पीने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे एडिक्शंस होते हैं ना सब. तो अगर आपका एडिक्शन पे कंट्रोल नहीं होगा तो ये आपको ले डूबेंगे, समझ रहे हो. यू वुड गो डाउन. ये जो आपको मैंने बोला ना नेगेटिव एनर्जी साइकिल्स में, तो ये कन्वर्जन आपका रुक जाएगा. तो इसके लिए भूत प्रेत पिशाच ये सारे 2-3 तत्वों में होते हैं. तो इसके लिए आप इनको देख नहीं सकते बिकॉज आपकी ये आंखें हैं, ये 5 तत्वों की है. और आपको 3 तत्वों की शक्तियाँ चाहिए ये सारे चीज़ों को देखने के लिए. ये जब तक आपकी शक्तियाँ नहीं होंगी तो आप ये सब देख नहीं पाओगे. इसके लिए तो बहुत सारे गुरु बिरु संत बिंदु प्योर ओरिजिनल वंस हैं, उनको दिखता है ये सारी चीज़ें. तो आप जितना आप प्योर करोगे या बनाओगे अपने आप को, आपका मन, आपका बॉडी, आपका सोल, योर एवरीथिंग इन योर बॉडी नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, क्लेंज्ड. प्यूरिफाई कैसे करोगे? चैंटिंग. चैंट गॉड्स नेम, वॉट एवर गॉड्स नेम इट इज ऑल वन गाइज नेम. चैंट हिज नेम. आपका ईगो आपको करने नहीं बोलेगा. समझ लो कोई मुस्लिम है तो वो बोलेगा अरे यार मैं राम का नाम क्यों लूँ, क्योंकि वो ईगो है, ईगो बोल रहा है. तो ईगो है तो ईगो तो आपको डुबाएगा ही. वो तो मूर्ख बंदा है, वो आपको डेंजरस बंदा है वो. जब तक ईगो को आप कंट्रोल नहीं करोगे, उसको थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर जैसा नहीं देखोगे, तो वो आपको ले डूबेगा. गारंटी ही विल टेक यू डाउन. बिकॉज इट इज़ हिज जॉब, इट इज़ हिज वो एक उसका नेचर है. लाइक नेचर ऑफ अ स्नेक इज टू बाइट. इवन इफ यू गिव दैट स्नेक मिल्क, प्रसाद विषाद जो भी है, खिलाओ पिलाओ, वो उसका नेचर ही है काटना, वो काटेगा. तो so that's how it is. And God gave you this life, a beautiful life, man.
ये चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, ये आपको एक प्रसाद दिया गया है। प्रसाद मतलब फ्री विल, भगवान ने बोला है कि जा बेटा तेरे को लगता है, इट्स लाइक मी टेलिंग माय मॉम यार मैं अमेरिका जाके कुछ तो करूँगा। मेरी मॉम बोलते बेटा इधर ही कुछ कर, पर मैं बोलता नहीं नहीं मैं अमेरिका जाऊँगा। तो अभी माँ है ना यार, प्यार करती है, बेटे का सुख दुख और खुशी देखेगी। सो द सेम वे मदर विल टेल ओके किड, even if she doesn't want you to go, she will still say go. You want to live your life, go live your life. The same way uh, God lets you go free will के हिसाब से, that's why he gave you free will. He gives you free will to go and experience this world and experience everything, and then real come to a realization कि यार वेस्ट ऑफ टाइम है, ये भगवान ही सही था, वही मेरे को सब सही है यार, भगवान तुम इसको एक्सपीरियंस करो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिम, सो एक्सपीरियंस करो उसको यार। इतना अमेजिंग बंदा है ना यार, मेरे को कभी कभी रुलाता है, कभी कभी हंसाता है, कुछ भी करता है। मैं बहुत सही हूँ यार, मैं बहुत सही स्पेस में हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सही हूँ। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था भगवान मुझको इतना अच्छा फील करवाएगा भाई साहब, बहुत अच्छा फील करवाता है। रो दूंगा मैं अगर ज़्यादा उसके बारे में बात करूंगा, बिकॉज यार बंदा क्या अमेजिंग है ब्रो, मैं कसम बोल रहा हूँ। इतना अमेजिंग बंदा मैंने कभी मेरे जिंदगी में किसी को भी नहीं देखा भाई, इतना अमेजिंग बंदा। ये बंदे ने आपको जिंदगी दी है, लाइफ दी है, एक गिफ्ट दिया है आपको, एक प्रसाद बोल सकते हो, आ, दिया है to use it in a proper way and mode. Please, I beg you all, please don't waste your life. It is not worth it, bro. Because as soon as you are dead, you forget everything up. Your slate has been cleaned off. You get a new chapter, new life to re-begin. Even if you are a Ravan kind of a personality, when you die, you're clean. Your slate has been cleaned off, and you get a new birth. Till you don't come to a conclusion कि भाई ये मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं रखा है, यू नो। तो ये आपको सिखाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो एक्सपीरियंस कीजिए, सीखिए, लर्न, हैव द इंटेंशन टू लर्न, मेक श्योर। ये ईगो में मत लेना, कोई सही बता रहा है गलत बता रहा है, ईगो में प्लीज़ मत लेना यार, क्योंकि ईगो तुम्हारा दुश्मन है एक्चुअली। तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। जिससे जिहाद करना है, जिससे गौ रक्षा करना है, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, आपका डार्कनेस। उसके साथ आपको जिहाद करना है जो अंदर है, समझ रहे हो। तो जब तक आप ये डार्कनेस से वॉर रेज नहीं करोगे अपने अंदर ही, समझ रहे हो, वो तब तक आपको ये वही चल रहा है, अपना गेम चल रहा है। ये सब गेम है, इट इज़ अ गेम, लाइफ इज़ अ गेम, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गेम डिजाइन बाय गॉड, प्रिसिजन। गॉड डज नॉट इंटरफियर, उसने प्रकृति करके एक एलिमेंट बनाया है उसके अंदर से ही, वो एलिमेंट ये सब ऑटो, इट्स लाइक एन AI which automatically registers your karma, good bad अच्छा बुरा, it automatically registered and as per that gives you a new life. कोई बंदा है जो ये चक्रस की मैं आपको बता रहा था, कोई बंदा है जो मरते वक्त खादड्या आहे, मतलब ही वॉन्ट्स टू ईट, त्याला फक्त खायचं आहे जिंदगीमध्ये, खाऊन खाऊन ही जस्ट बिकम फॅट, ही इज बिकम बिग. At the end of the day or end of his life, he will think about food. So at the end of your life, what you think about, who you think about also matters, because that is like your last wish that God approves of. If your last wish is food, आप एक pig बनोगे, you will become a pork, you will be killed and eaten like a pork chop, as per your deed. What you do, what you sow, बाइबल में क्लियरली बोला है, बट अगेन कोडेक्स, what you sow is what you reap, मतलब आप जो डालते हो बाहर, वही आपके, वही आपको कम बैक करता है। वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी, आप नेगेटिव नेगेटिव सुबह उठो, नेगेटिव फीड देखो, तो नेगेटिव नेगेटिव ही चलते रहेगा मन में। जैसे ही सुबह उठो, फ़ोन यूज़ ही मत करो, और यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट चैंट, बेस्ट इज चैंट ब्रो। आप जितना भगवान को स्मरण करोगे, एलोहीम एलोहीम, अदोनाय अदोनाय, राम राम, अल्लाह अल्लाह, कृष्णा कृष्णा, जीसस जीसस, जितना आप चैंट करोगे उतना आपके कर्म ख़त्म और नष्ट होते जाएंगे। और आप ये चीज़ के बारे में सोचो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार, उस दिन मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछता है कि यार अच्छे आदमियों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है।
अंडरस्टैंड, गॉड के यहाँ पे हिसाब थोड़ा अलग चलता है। जो भी बंदा भगवान की तरफ चलने के लिए ट्राई करता है, गॉड क्लेंजेस हिज नेगेटिव karmas first, and then he finishes his positive karma. Okay, for a good guy. For a negative guy or a bura admi, God finishes his good deeds first, and then starts bajaying his case on the with his bad deeds. That's why you would see Karan, कंस, ये जो कृष्णा का मामा था कंस था, फिर रावण था, ये जितने भी इनके बारे में भी मैं अलग स्टोरी बताऊंगा, ये क्यों कैसे क्या हुए। बहुत फनी स्टोरी है, उससे आपको समझ में आएगा ये गेम है। सो ये जब भी रावण वगैरह इन लोग सब लोग जब भी सब बुरा अत्याचार कर रहे हैं, सब बुरा बुरा कर रहे हैं, एंड यू वंडर यार, ये तो बुरा आदमी है, बट यू नो गॉड इज नॉट गिविंग हिम पनिशमेंट। भाई साहब, आएगा पनिशमेंट, वेट। गॉड इज जस्ट, ही इज जस्टिस। वो परफेक्ट टाइमिंग रुक देखता है, वो ही वेट्स फॉर ऑल योर गुड डीड्स टू गेट ओवर। जैसे बुरा खत्म हुआ, वो सॉरी, जैसे अच्छा खत्म हुआ, वो बुरा का चमाट मारना चालू करता है, एक चमाट के ऊपर चमाट, चमाट के ऊपर चमाट। दैट्स व्हाई यू वुड फाइंड ऑल दीज बिग बिग सेलिब्रिटीज, ऑल दीज बिग बिग गाइज, पॉलिटिशियन, लीडर बीडर, ये सब जो भी गलत किए हैं जिंदगी में, उनका आप देखोगे उनका जो लाइफ है बहुत ब्यूटीफुल रहता है, बट एट द एंड ऑफ देयर डेथ इनका लाइफ बहुत मिजरेबल होता है। द सेम गोज विद द गुड गाय। गुड गाय का लाइफ इज ऑल बैड 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 स्टार्टिंग स्टार्टिंग, बिकॉज गॉड इज क्लीनिंग योर कर्मास, राइट। दुनिया मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम का कर्मा है, वो आपको इतना जल्दी थोड़ी खत्म करेगा, वो धीरे 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 खत्म करते जाएगा। क्योंकि imagine you are a light bulb of 100 volt. You would say why God doesn't finish it ASAP. Imagine you are a light bulb of 100 volt and God is 1 billion trillion volt of light. If he puts that energy into you, you would burst. आप फट जाओगे, because that's too much power to handle. तो दैट्स वाई ही प्यार से क्लीनिंग क्लीनिंग करता है वो, बिकॉज ही इज ऑल्सो एंजॉइंग यू कटिंग योर karma. ही इज एंजॉइंग क्लीनिंग यू, बिकॉज इट इज़ लाइक अ बच्चा दैट इज, एक जो देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड हु इज, यू नो, he's in a muck and stuff and he's all mud and everything. He comes to his mother. That's how you should come to God. No matter how good or bad you are, come to God. That's what God says clearly. आप जैसे भी चिक्कल में हो, जैसे भी आप मक में हो, यू कम टू मी, आई विल क्लीन यू। सो गॉड एंजॉयज क्लीनिंग हिज बेबीज। इट्स लाइक अ मदर क्लीनिंग हिज ओन चाइल्ड, स्लोली स्लोली। वो माँ ऐसा घसती नहीं है उसको, प्यार से घसती है, क्लीन करती है, बच्चा है, प्यार करती है। भगवान को समझो, और ये जो लाइफ दिया गया है आपको, ये लाइफ को आप बहुत रोज सुबह उठ के ग्रेटफुल रहो। भगवान को बोलो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ गॉड। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखो, समझ रहे हो। बुरा तो है ही है, तो बुरा ही देखते रहोगे तो माइंड बुरा, सबकॉन्शियस बुरा, सब बुरा बुरा, आप भी बुरे बनते जाओगे। फिर बाद में आप बोलोगे कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा, वो आपकी एनर्जी गलत जा रही है भाई साहब। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर ओन एनर्जी, दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। सफरिंग होती भी किसको है, हु इज सफरिंग, बॉडी इज सफरिंग, योर सोल नेवर सफर्स। एनी टाइप ऑफ कटिंग वुंडिंग जो भी आपको लगता है ही हो रहा है, किसको हो रहा है, हु, व्हाट इज इट हैपनिंग टू द बॉडी। बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंटल चीज़ है। तो आप बॉडी नहीं हो, आप आपके आप को बॉडी समझते हो, इसके लिए आपको ये सारे सफरिंग झेल रहे हो। जब आप अपने आप को बॉडी समझोगे ना, प्रैक्टिस है, टाइम लगेगा थोड़ा, धीरे 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 करके आप आगे बढ़ते जाओगे। और कोई नहीं, एन्जॉय दिस प्रोसेस यार, बहुत सुंदर प्रोसेस है, एन्जॉय कीजिए। होली स्क्रिप्चर्स पढ़िए, कोई भी किताब पढ़ो, सब एक ही है भाई। मैं तेरे को कॉन्फिडेंस में सब पढ़ा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग अलग स्टाइल। और ट्यूबलाइट जल गई ना तो सिमिलैरिटीज़ दिख जाएंगे तुमको। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो हिंदुइज्म बोल रहे कि कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा। वो एक सफ़ेद घोड़े पे आएगा, हाथ में तलवार होगी। आ, उसके बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। पर आप बाइबल खोल के रेवलेशंस पढ़ोगे, उसमें भी सेम टू सेम दिया है। तो ट्यूबलाइट जलाओ और सोचो कि एक ही चीज़ है, एक ही बंदा है, अलग अलग स्टाइल्स में आ रहा है। वो मुस्लिम की किताब में भी है, वो मेहदी आने वाले हैं,
जो भी है सेम वही व्हाइट सफ़ेद घोड़े पे आएँगे तलवार लेके सेम देखो सब सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम और तुम बोलते हो भाई भगवान अलग है। अबे भगवान अलग नहीं तेरी बुद्धि अलग है। द रीज़न व्हाई ये सारे चीज़ अलग-अलग, अलग-अलग बनाया है बिकॉज़ भगवान को भी पता है कि अपने बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग-अलग लोगों किसी को जलेबी पसंद है, किसी को श्रीखंड पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। तो वो लोगों को उस हिसाब से वो वहाँ पे बॉर्न करवाता है। ऐसा भी कभी होता है कोई बंदा है जो हिंदू है, बॉर्न हुआ है, बट वो मुस्लिम के बारे में बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है या कोई मुस्लिम है जो हिंदू के बारे में बहुत नफ़रत करता है, एक-दूसरे को नफ़रत कर रहा है। तो प्रकृति क्या करेगी मालूम है क्या? इतना फनी कॉन्सेप्ट है ब्रो, व्हाट अ स वो ऐसा चव्हाड़ मारती है ना, प्रकृति आपको एक-दूसरे के अलग-अलग धर्म में पैदा करेगी। मतलब हिंदू को मुस्लिम बनाएगी, मुस्लिम को हिंदू बनाएगी और क्यों लेसन धडा मराठीत बोलतात धडा शिकवण्यासाठी. तर ये आपको लेसन सिखाने के लिए आपको ये किया जाता है और तो वही बोल रहा हूँ किसी से नफ़रत मत करो यार, सब भगवान के रूप है, सब भगवान के अंश है, अलग-अलग स्टाइल में गेम खेल रहे हैं। मैं क्यों बताऊँ कि ये सब भगवान के रूप है। एक बार बर्बरिक नाम का एक बहुत पावरफुल बंदा था, वॉरियर था। I have lived where he was born. I was there. I was living in the same vicinity in old Manali. Very beautiful place, bro. कभी ज़िंदगी में आपको मनाली देखने का चांस मिले, मनाली देखो ज़रूर ज़िंदगी में बहुत सही है। सारे अपने ऋषि मुनि सब वहीं पे अभी भी है। देख नहीं पाओगे क्योंकि वो तत्व उनके अलग है, तो परम तत्व की शक्ति है, तो आप वो देख नहीं सकते हो। तो बर्बरिक बोला था कि प्रभु वो तो वॉर महाभारत एक सेकंड में ख़त्म कर सकता था पर उसने बोला श्री कृष्ण को यार प्रभु मेरे को ये वॉर देखना है मैंने ये पूरे वॉर के लिए जन्म भर ट्रेनिंग की है वॉर के लिए इसमें टू गेट इन्वॉल्व इन दिस वॉर आई वांट टू सी दिस वॉर सो कुछ सम लीला गेम खेल के उसको गर्दन वर्दन काट के उसको एक माउंटेन के टॉप पे रखा गया था जो ये राजस्थान में वो उसका ये है टेम्पल है खाटू श्याम बोलते हैं उसको वहाँ पे सो जब भी उसको पूछा गया था कि आपने क्या देखा वॉर में तो आपको पता है उसने क्या बोला वो पहले बोल नहीं रहा था बट कृष्णा टोल्ड हिम बोल तू बोल बिंदास बोल क्योंकि वो ऐसा चीज़ है कि लोग हंसेंगे लोग बिलीव ही नहीं करेंगे तो वो बोलता है कि यार मरने वाला भी श्री कृष्ण था मारने वाला भी श्री कृष्ण था मैंने पांडव और कौरव को देखा ही नहीं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हिंदू भी कृष्णा है मुस्लिम भी श्री कृष्णा है तो कौन किसके साथ झगड़ रहा है और क्या गेम चल रहा है ये गेम है डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस गेम व्हेन यू गो एंड वॉच अ मूवी व्हेन द हीरो डाइज you don't cry if you cry you're stupid because it's not true same way when you die or when this whole game is happening it's a game so ये मूवी चल रही है आप इसमें एक एक्टर हो एंड प्ले योर रोल गुड दैट्स इट आप अगर एक फादर हो प्ले द फादर्स रोल गुड इफ यू आर अ मदर प्ले द मदर्स रोल गुड love each other serve each other क्योंकि all is God so technically if you are pressing your mother's feet you are pressing God's feet क्योंकि बट भाई साहब आपको भगवान चाहिए माँ बाप की सेवा करो भैया माँ बाप ये आपको भगवान का द्वार देगा आपको कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा कुछ मेहनत मत करो ये स्पिरिचुअल विरिचुअल ये सब चीज़ छोड़ दो नहीं जम रहा है मेडिटेट करने के लिए नहीं जम रहा है किताब पढ़ने के लिए कुछ इश्यू नहीं है ब्रो कुछ इश्यू नहीं है माँ बाप की सेवा करो आपको पर ब्रह्म मिल जाएगा परमात्मा मिल जाएगा माँ बाप ही आपका सब सही है भाई पैर दबाओ पैर उसके पैर पकड़ के सर पे लगाओ भाई 9 महीने आपके पेट में माँ ने आपको रखा यार वो बंदी का आप नहीं सेवा करोगे तो किसका करोगे यार आप सोचो बाप का वही बाप ने जिस वो अगर बाप नहीं होता तो माँ पैदा कर नहीं सकती समझ रहे हो तो माँ और बाप का दोनों का equal requirement है so love your father and love your mother god sent them as their representative how you act with them is how you act with god so if you don't serve your mother and father the way how you should be doing that means you're not serving god the way how it should be done सो सर्व योर मदर भाई मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम लोग में भी बोला जाता है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है तो वो ही माँ भले गाली दे कुछ भी करे कैसी भी हो यार उसके पैर आप पकड़ लो सर पे रखो क्योंकि वही आपको बोलतात मराठीत स्वर्गाचा राज्य तुम्हाला तेच देऊ शकतील
अगर आपको ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी वगैरह नहीं समझ में आती है, जब जब भी सब पे सिंपल है भाई, कलयुग है तो आपको जप करना ही मस्ट है। क्योंकि यही चीज़ आपका क्लेंजिंग करेगा, माइंड, सोल, बॉडी क्लेंजिंग करेगा। तो ये तो मैं तो बढ़ सब वो तो चल रहा है मेरा, मैं बात ही नहीं करता, वो तो चलते जाएगा यार, क्योंकि बहुत हो गया 40 मिनट्स के ऊपर। I will continue this in another video to explain you guys these secrets and mysterious things of life, mystical things of life, funny world. It's a game. Please don't get involved in the game. Enjoy this game. Play the best you can as per your औकात, टू बी प्रिसाइज। आपके औकात के हिसाब से आप जितना कर सकते हो करो, ज़्यादा पुश फोर्स मत करो, बी एन ऑब्जर्वर। और सही है यार, सुखी रहो, ब्लिसफुल रहो, भगवान को याद करो, बेस्ट है। और क्या ही बोलूँ यार, मैं तो बोलते बड़बड़ करते चले जाऊंगा मैं तो। एनी विच इज़, आई ग्रेटली अप्रिशिएट यू गाइस टाइम एंड पेशेंस। और परम शांति, सुखी रहो, एंड गॉड स्पीड टू ऑल ऑफ यू ऑल।